अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने बहुत से टॉपिक्स पिछले दिनों ऑनलाइन कवर कर लिए हैं और उसकी एग्जांपल्स क्योंकि कम थी तो हम आज स्टार्ट करते हैं लीनियरिटी से। और लीनियरिटी नॉर्टन थ्योरम और विद डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज दोनों, इसके अलावा एक मैक्सिमम पावर की एग्जांपल भी आज ही कवर कर लेंगे। वो अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है नॉर्टन और थ्योरम से तो उसको आज डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अभी एग्जांपल है, कहते हैं आई नॉट फाइंड करें यूजिंग लीनियरिटी थ्योरम। ठीक है, तो लीनियरिटी थ्योरम क्या था, हम एज्यूम करते थे जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी होती है उसको क्वेश्चन में कहा गया 1 मिलियन पेयर एज्यूम कर लें, हम 10 मिलियन पेयर भी अगर एज्यूम कर लें, हम 20 मिलियन पेयर भी एज्यूम कर लें, आंसर सेम आता है। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि आई नॉट को फिलहाल 1 मिलियन पेयर एज्यूम करें और एक्चुअल आई नॉट फाइंड करें तो हम 1 मिलियन पेयर ही एज्यूम कर लेते हैं। तो 12 मिलियन पेयर की वजह से जो करंट आई नॉट फ्लो हो रहा है वो हमने फाइंड करना है, लेकिन यूजिंग लीनियरिटी हम एज्यूम कर लेते हैं कि आई नॉट 1 मिलियन पेयर है और फिर बैकवर्ड ट्रेवर्स करते हैं और देखेंगे कि उस एजम्पशन से अगर आई नॉट 1 मिलियन पेयर हो तो सोर्स की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो वो जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन को यूज करते हुए हम एक्चुअल आई नॉट फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड हमने आई नॉट ही करना है, लेकिन क्योंकि लीनियरिटी थ्योरम यूज कर रहे हैं तो इसकी आई नॉट को हम किसी भी वैल्यू से एज्यूम करते हैं। तो वो फिलहाल क्वेश्चन में कहा गया कि आप इसको 1 मिलियन पेयर एज्यूम करें। तो अगर ये आई नॉट 1 मिलियन पेयर है तो अगर मैं खुद से इसको सर्किट को लेबल कर दूं, इसको मैं कह देता हूँ IS और वोल्टेज इंटरनल्स पे जो है उसको मैं कह दूँ फिर PS और इस करंट को मैं कहता हूँ I1, आगे गया I2। इस तरह I2 इज डिवाइडिंग इन 3 पार्ट्स, I3, I0 एंड I4। ठीक है, तो I0 हमने एक्चुअल फाइंड करना है, लेकिन अभी हमने assumption कर लिया कि I0 1 मिलियन पेयर है। So if I0 is 1 million pair, I0 is passing through 4 kilo ohm resistor and 4K resistor is parallel with this 2K resistor and the sum of these two resistors 2K plus 2K 4K. So this 4K is also in parallel with this series combination which has combined value of 4K 4 kilo ohms. तो हम इस पॉइंट के वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज VA, दिस इज VB। नाउ वी कैन फाइंड VB यूजिंग Ohm's law। VB will be current passing through this resistor, that is I0 into resistance 4 kilo ohm। So I0 into 4 kilo ohm, I0 is 1 million pair and this is 4K, so this will be 4 volts। Now we know that VB is 4 volts, VB is 4 volts। So if VB is 4 volt, we can find using Ohm's law I3 and I4। So I3 will be VB over 2K, that is 4 divided by 2K is 2 million pair, and I4 will be VB over 2 plus 2 4K, total resistance is 4 over 4K is 1 milliampere। So I3 and I4 are 2 milliampere and 1 milliampere simultaneously if I0 is 1 milliampere। Now we can find I2। How can we find I2? We know I3, we know I0, we know I4, so we can apply KCL at this node VB। So applying KCL at node of VB, this will become minus I2 plus I3 plus I0 plus I4 is equal to 0। So I2 will be sum of I3 plus I0 plus I4। I3 is 2 milliampere plus I4 is 1 milliampere and
I naught is 1 million. So I2 is 4 million. So if we know I2, we can find voltage drop across this 2 kilo ohm resistor. So let's say this is VC. So VC will be I2 into 2K. So I2 is 4 milli into 2K, that is 8 volts. VC is 8 volts. Voltage drop across this resistor is 8 volts. Now we know to drop of 2K, we know I2. Now can we find VA? We can find VA using KVL. If we apply KVL at this mesh, we can easily find VA. So applying KVL at this mesh, this will become node of voltage of this node is VA. It means that VA is voltage drop of 2K. So minus VA plus VC plus VB is equal to 0 is KVL. If you apply KVL at this mesh, so now we can find VA. VA is equal to VC plus VB. VC is 8 volts and VB is, what was VB? VB is 4 volts. So VA is 12 volts. So VA is 12 volt. You can see that VA is equal to VS. So we can say that voltage at this node is VS as well, because V and VS are in parallel. This resistor and this current source are in parallel. VS is voltage across current source and VA is voltage across this 2K resistor. So because they are parallel, so V is equal to VS. So we can also write VA is equal to VS. So if VA is 12 volts, so we can find I1. Now I1 will be V over R 12 over 2K. This is I1. Now we know VA. VA is 12 divided by 2K is 6 milliampere. So if I1 is 6 milliampere, I2 is 4 milliampere. So we can find IS now. So using KCL at this node, we can write IS is equal to I1 plus I2. So 6 milliampere plus 4 milliampere is 10 milliampere. So IS, using the assumption I naught is equal to 1 milliampere, we get IS is equal to 10 milliampere. So how I naught is related to input current IS? Relation between this output current and input current. Can I write I naught is equal to 1 over 10 times the input current. I naught is 1 over 10 times the input current, because input current is 10 milliampere and we assume that I naught is 1 milliampere. So relation between these two current is I naught is 1 by 10 times the IS. So now we can find actual I naught. So actual I naught was, or actual I naught will be, using this relation 1 over 10 IS. Actual I naught, let's say A for actual. Actual I naught will also be 1 over 10 times IS. But what was IS?
when we started the question, the actual IS was 12 milliampere. So because this is a resistive circuit and resistive circuit is a linear circuit, so if relation between assumed I naught and assumed IS is 1 by 10 times the IS, in original case the relation will be the same, so I naught actual will be also 1 by 10 times the IS, and actual IS is 12 milliampere into 12 milliampere. So I naught is 1.2 milliampere. I naught actual is 1.2 milliampere. तो हमने आई नॉट फाइंड करना था, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था कि आई नॉट फाइंड करें यूजिंग लीनियरिटी, लेकिन साथ ही कहा गया था कि अगर आई नॉट 1 मिलियम्पेयर हो तो एज्यूम हमने आई नॉट कर दिया 1 मिलियम्पेयर, और एक्चुअल जो आई एस था वो 12 मिलियम्पेयर था, ठीक है। क्योंकि लीनियरिटी का थ्योरम हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी होती है उसमें और इनपुट सोर्स में, ठीक है, कि वो कैसे रिलेटेड हैं, और फिर उसी रिलेशन को यूज करते हुए हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक्चुअल जो वैल्यू थी वो 12 मिलियम्पेयर थी, आई नॉट अननोन था, तो हमने लिनियरिटी का प्रोसेस स्टार्ट किया, हमने आई नॉट को एज्यूम किया 1 मिलियम्पेयर, और फिर बैकवर्ड रिवर्स करते करते हम क्वांटिटीज फाइंड करते हुए आए, और हमने अगर आई नॉट 1 मिलियम्पेयर हो तो आई एस कितना बनता है वो फाइंड कर लिया, वो बना 10 मिलियम्पेयर। तो हमने देखा कि अब आउटपुट और इनपुट का रिलेशन क्या बन रहा है, वो बन रहा था 1/10 टाइम्स द IS। उसी रिलेशन को यूज करते हुए हमने एक्चुअल वैल्यू पुट की। एक्चुअली तो IS 12 मिलियम्पेयर था, लेकिन क्योंकि सर्किट लीनियर है तो जैसे आउटपुट और इनपुट कनेक्टेड रिलेटेड हैं, वो रिलेशन वही रहेगा लीनियर सर्किट की वजह से, ठीक है। प्रॉपर्टीज होती हैं लीनियरिटी की, स्केलिंग एंड एडिटिविटी। तो उस प्रॉपर्टीज को अगर आप देखें तो रिलेशन ये सेम रहेगा, तो हमने एक्चुअल वैल्यू पुट की 12 मिलियम्पेयर, तो जो एक्चुअल आई नॉट है वो हमारे पास आ गया 1.2 मिलियम्पेयर। तो आई थिंक ये और एग्जांपल है, इसके बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन वो हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से। लेकिन फिलहाल इसको आप यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, और मैंने सारा सोल्यूशन तो कर दिया, तो आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सर्किट रिलेटेड है थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। ऑफ कोर्स अभी तक आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं पढ़ा, लेकिन जो नेक्स्ट मंडे वाला लेक्चर है वो उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आप पढ़ेंगे। तो इसको मैंने क्यों चूज़ किया, उसकी मेन रीज़न ये है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको नॉर्टन या थेवेनिन थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब क्योंकि आप लोग ऑलरेडी नॉर्टन थ्योरम भी पढ़ चुके हैं और थेवेनिन थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, तो ऐसी एग्जांपल जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वाली हो उसको सॉल्व करने का दो फायदे होंगे। एक तो आपका थेवेनिन और नॉर्टन रिवाइज हो जाएगा, दूसरा ये कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की अलग से हमें कोई एग्जांपल नहीं करनी पड़ेगी, जो कि ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में आपका टॉपिक आ रहा है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में आपको गाइड कर देता हूँ एक्चुअली होता क्या है थोड़ा सा। जो लोड रेजिस्टेंस होती है, नॉर्मली लोड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होती है जिसके क्रॉस आप कोई क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्टन के केस में आपको कहा जाता है V0 फाइंड करें, तो आप उस रेजिस्टर को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो एक्चुअली आप उस रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। या किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फाइंड करना है तो आप उस रेजिस्टेंस को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो एक्चुअली आप उसको लोड रेजिस्टेंस एज्यूम करते हैं। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है, आपको थेवेनिन नेटवर्क अगर याद हो, इसका अगर थेवेनिन नेटवर्क मैं फाइंड करना चाहूँ, क्वेश्चन में बेसिकली इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि RL की वो वैल्यू फाइंड करें जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी और फिर उस मैक्सिमम पावर को भी फाइंड करें। तो
इसका मतलब है कि RL जो है ये वो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस मैंने मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है। मींस ये मेरा लोड रेजिस्टर है, तो इसको मैं सर्किट से डिस्कनेक्ट करूंगा। तो अगर आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट याद हो किस टाइप का होता है, ये होता है VOC, V ओपन सर्किट, और इसको हम V थेवेनिन कहते हैं। ये होता है R थेवेनिन, और जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी होती है जो कि इस केस में RL है, उसको हम इस जगह पे लगा लेते हैं, और फिर हमने जो भी क्वांटिटी फाइंड करनी है सर्किट को सॉल्व करके लगा लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सिंपली ये कहता है कि सोर्स से लोड तक मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होती है जब लोड की वैल्यू R थेवेनिन की वैल्यू के इक्वल हो। ठीक है, सोर्स से लोड तक मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगी जब लोड की वैल्यू R थेवेनिन की वैल्यू के इक्वल हो। तो इसीलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आपको या तो नॉर्टन चाहिए होता है या थेवेनिन थ्योरम चाहिए होता है। ठीक है, तो इससे तो नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम भी रिवाइज हो जाएंगे। ऑफ कोर्स जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का, तो उसमें थ्योरेटिकली जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिलहाल उसने कहा है कि RL की वो वैल्यू फाइंड करें जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो अब ये सब करने के लिए मुझे थेवेनिन नेटवर्क चाहिए। थेवेनिन नेटवर्क कैसे बनता है? RL की मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है, तो सर्किट को मैंने इससे डिस्कनेक्ट कर लिया और थेवेनिन नेटवर्क में लगा दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किट से RL को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये जो दो टर्मिनल बनते हैं, इन टर्मिनल्स पर जो हम वोल्टेज फाइंड करते हैं वो है VOC, V ओपन सर्किट, और इन्हीं टर्मिनल्स पे जो हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट, वो बनती है R थेवेनिन। तो मैंने खुद से ही ऐसा सर्किट चूज किया जिसमें डिपेंडेंट सोर्स लगा हो, क्योंकि अगर आपको डिपेंडेंट सोर्स वाले सर्किट सॉल्व करने आ गए तो इंडिपेंडेंट सोर्स वाले सर्किट को इतनी मुश्किल नहीं रहती। तो इंटेंशनली मैंने ऐसा सर्किट चूज किया जिसमें डिपेंडेंट सोर्स लगा हो। तो अब देखिए यहाँ से आपका थेवेनिन और नॉर्टन स्टार्ट हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है। अब मुझे V ओपन सर्किट भी फाइंड करनी पड़ेगी और I शॉर्ट सर्किट भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सर्किट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज दोनों हों तो हमें पता है कि R थेवेनिन किसके इक्वल होता है? V ओपन सर्किट ओवर I शॉर्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ R थेवेनिन फाइंड करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स को की इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता होती, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का। ठीक है, वो नॉर्मली एम्पलीफायर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि एम्पलीफायर की, ये बेसिकली इतना सिंपल सा बॉक्स नहीं है, इसकी बैक एंड पे एम्पलीफायर्स होते हैं। ठीक है, जो जिनकी पूरी सर्किटरी एग्जिस्ट कर रही होती है, तो हमें उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता। तो इसलिए हम इसको, अगर ये वोल्टेज सोर्स है डिपेंडेंट, तो हम आराम से ये नहीं कह सकते कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हटाएं उसे शॉर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते तो इसलिए फिर हम R थेवेनिन भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इस सोर्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस सोर्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। डिपेंडेंट सोर्स को उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पता ही नहीं होती। तो उसका हमने तरीका ये पढ़ा हुआ है कि R थेवेनिन कैसे फाइंड करते हैं। हम ये ओपन सर्किट फाइंड कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स थेवेनिन का केस है, और I शॉर्ट सर्किट फाइंड कर सकते हैं, जो नॉर्टन थ्योरम का केस है। तो V ओपन सर्किट फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ पर डिफरेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वो मेथड्स कौन से हैं? वो हम नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, हम मेश एनालिसिस लगा सकते हैं। तो मैं जो जिससे सॉल्व करने जा रहा हूँ वो है मेश। अच्छा, इस थर्ड करंट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, दो करंट से भी आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब दो करंट से आप I1 भी फाइंड कर लेंगे, I2 भी फाइंड कर लेंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको VOC फाइंड करने में मसला होगा। ठीक है, तो फिर वो इसके वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे, इसका वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे, KVL लगाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप थर्ड करंट उस लूप में फ्लो करवा लिया करें जिसमें आप ओपन सर्किट फाइंड कर रहे हो।
ऑफ कोर्स क्योंकि वो ओपन सर्किट है I3 0 हो जाता है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है कि हमारे पास बना बनाया VOC का रिलेशन बन के आ जाता है, जिसमें हम I1 और I2 की वैल्यू डालेंगे तो VOC आ जाएगा। तो अब यहाँ से थेवेनिन स्टार्ट हो गया, जिस पर आपने फोकस करना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब आप पढ़ लेंगे टॉपिक ऑफ कोर्स इस मंडे तक, तो फिर आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, शुरू से आपको समझ आ जाएगी। तो एक्चुअली हम RL फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और मैक्सिमम पावर जो इसमें से पास हो रही है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो I1 का रिलेशन लिखते हैं। I1 क्या होगा, -100 वोल्ट्स प्लस 4 ओम इंटू I1 माइनस I2 प्लस 4 ओम इंटू I1 माइनस I3 प्लस 20 इक्वल टू 0। ये बन गया I1 का रिलेशन। I2 का रिलेशन क्या बनेगा, 4 ओम I2 माइनस I1 माइनस 4bx प्लस 4 इंटू I2 प्लस 4 इंटू I2 minus I3, because two currents are flowing from this resistor, one is I2 and other is I3 in opposite direction. So this will be equal to 0. कितने voltages होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 voltages. Now let's write down the equation for I3. This will be minus 20 plus 4 into I3 minus I1 plus 4 I3 minus I2 plus VOC is equal to 0. And one extra equation for dependent source, because we are solving the circuit which has dependent source. So we will define Vx. So Vx is actually, if you see the polarity of Vx, positive upward and negative downward, it matches with the direction of I1. So I1 minus I3 into 4 ohm. I1 minus I3 into 4 ohm. So this is fourth equation. Now we know that because I3 is flowing in an open circuit, so I3 will be 0. So if I3 is 0, so we can update these equations according to the updated value of I3, which is 0. So we can see that in first equation, if I3 is 0, then this will remain 4 ohm into I1. In second equation, if I3 is 0, this will be 4 I2. In third equation, if I3 is 0, then this equation is, and and for Vx, if I3 is 0, then Vx will be 4 into I1. 4 into I1. Let's write 4. Because I3 is 0. So now we have equation for VOC. We can find I1, I2 using these two equations. Let's find I1 and I2. The equation will become 8I1. 8I1, 4 plus 4, 8
I1 minus 4I2 is equal to 100 plus 100 minus 20, 80 plus 100 minus 20, and this is A. Now for second equation, this will be minus 4 I1 plus 8I plus 12I2. so minus 4 I1 plus 12I2. 12I2 Yes. plus 12I2 minus 4 Vx minus 4 Vx. Now we know that Vx is 4 I1. So we will write the value of Vx. Vx is 4 I1 is equal to 0. So this will become minus 16 I1 minus 4 I1 minus 20 I1 minus 20 I1 plus 12 I2 is equal to 0. This will be equation B. Now we can easily solve equation A and equation B. Just multiply equation A with 3, then add in equation B. So A into 3 will be 24 I1 minus 12 I2 is equal to 80, and add this equation in B. Equation B is minus 20 I1 plus 12 I2 is equal to 0. So after adding these two equations, these two voltages will be cancelled. So the final answer is 4 I1 is equal to 80, or I1 is 80 by 4 or 20. I1 is 20. If I1 is 20, then we can find I2 by using either A or B equation. So 20. what? So I2 will be, using equation A, I2 will be 160 minus 4 I2 is 8 into I1. I1 is 20 minus 80. This will be 160 minus 80. 80. 160 minus 80 is 80, and 80 divided by 4 Okay. will be, again 80 divided by 4 will be 20. 20. So I1 is 20, I2 is 20. Put the value of I2 in this equation. We can find VOC by putting the value of I2 in this equation. Let's write on Vx is equal to 4I1 somewhere else. We know that Vx is equal to 4I1. So we can find VOC. VOC is equal to minus 12 plus 20 plus 4I1 plus 4I2. VOC is 20 plus 4I1 plus 4I2. So let's put the value of I1 and I2. Plus 80. 4 into I1 is 20 and I2 is 80.
20. So VOC is 20 plus 80 plus 80. 180. 180. 180 volts. So VOC is 180 volts. Now we know VOC, let's find ISC. So after finding ISC, we can find R Thevenin. So let me check VOC over here. VOC is 660 volts. 20 plus 4I1 plus 4I2. Just pause it. तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है. हमने कहा था A को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 80 को 3 से ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करना था, जो नहीं है. तो ये कितना बनता है 240. 80 into 3 240. So थोड़ी सी इक्वेशन चेंज हो जाएगी. नाउ 4I1 is not 80, it's 240. 240. And I1 will 60. be 60 ampere. Again 4I2 is equal to 8 into 400. this is not 20, this is 60. So 480 minus 80. 480 minus 80. 80. 480 minus 80 divided by 4. 400 divided by 4. 100. It's 100. Yes. I2 is 100 ampere. And now if I2 is 100 ampere, then what we did after that? No. 4 into I1 is 60. 4 into I2 is 100. Now 40 plus 240 plus VOC is 400. we didn't find VOC. ये कोई ना. Now VOC is 400 plus 240 plus 20. 20. 260. 260. 660. Yes. VOC is 660. 660. Now VOC is 660. 660 volts. Now we find ISC. तो ISC के लिए हम क्या करते हैं, जिन टर्मिनल पे हमने VOC फाइंड किया होता है या जिधर से हमने लोड डिस्कनेक्ट किया होता है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि उसमें से करंट पास कर रहा है वो I शॉर्ट सर्किट. So in this case I3 is equal to ISC because ISC एक इंडिपेंडेंट ब्रांच में, ठीक है. I3 is ISC. तो इस नई सिचुएशन के मुताबिक अगर हम इक्वेशंस को अपडेट करें तो I1 की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा. I1 की इक्वेशन स्टार्ट होती है यहाँ से -100 प्लस 4 I1 माइनस I2 प्लस 4 I1 minus I3. Now in this case I3 is not equal to 0 because these two terminals are short. So I3 is equal to I short circuit. I1 minus I3 plus 20 is equal to 0. सेकेंड इक्वेशन में आ जाए I2 की इक्वेशन देखते हैं इसमें क्या चेंज आएगा. 4 I2 minus I1 सेम minus 4VX सेम plus 4 I2 same plus 4 I2 minus I3. 4 I2 minus I3. Now I3 is not 0. So ये वापस आता है. I3 की इक्वेशन देखें. I3 is -20 plus 4 into I3 minus I1. 4 into I3 minus I1 plus 4 into I3 minus I2.
4 into I3 minus I2. Now there is no VOC because these two terminals are short, so VOC is 0. So there is no VOC in this case. Is equal to 0. ये तीन इक्वेशंस बन गई VOC वाली इक्वेशन Now I3 is not 0. तो चौथी इक्वेशन हमने जो लिखी थी वो क्या थी? Vx थी. Vx is now 4 into I1 minus I3 because in this case I3 is not 0. So if we substitute the value of Vx in this equation, so all three equations will be in terms of number of equation is equal to number of variables. So for now Vx is an extra variable, so we will substitute Vx by 4I1 minus I3. So this will become in a standard form where number of equation will be equal to number of variables. So we can solve that system of equation where number of equation is equal to number of variables. तो इसकी मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ, ऑफ कोर्स फिर आप सॉल्व करके देख लीजिएगा जो बनती है. इसकी मैट्रिक्स जो बनती है इसमें देखना ना कोई मिस्टेक नहीं है. इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं. तो I1 की इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में? 8I1 and minus 4I2 minus 4I3 is equal to 100 minus 20 80. Yes. I2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी? I2 की इक्वेशन ओके फर्स्ट हम Vx को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. Vx की वैल्यू क्या है? 4 into I1 minus I3. 4 into 4 I1 minus I3 तो 16 I1 minus I3 बनती है. Vx को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ minus 16 I1 minus I3 तो मैं वो लेने लगा minus 16 I1 minus I3. ठीक है. तो I2 की इक्वेशन क्या बनेगी? I1 minus 20 I1. I2 is 4 8 and 4 12 plus 12 I2 and I3 is minus 4 I3 and minus 16 I3 minus 20 I3 is equal to 0. For I3 minus 4I1 minus 4I2 Plus 8I3 plus 8I3 is equal to 20. तो मैट्रिक्स क्या बनेगा इसका? 8 minus 4 minus 4 minus 20 12 minus 20 minus 4 minus 4 8 I1 I2 I3 is equal to 80 0 20 80 0 20. तो ऑफ कोर्स इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास I1 I2 एंड I3 आ जाएगा. तो I1 I2 I3 आता क्या है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, फिर आप चेक कर लीजिएगा. इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने से I1 आपके पास आ जाएगा 60 एम्पेयर, I2 45 एम्पेयर, 60 एम्पेयर I2 45 एम्पेयर एंड I3 40
I3 आपके पास आ जाएगा 55 एम्पियर, 55 एम्पियर। तो हमें पता है हम ये सर्किट सॉल्व कर रहे हैं फॉर ISC, so we know that I3 is actually equal to ISC और ISC is equal to I3, so I short circuit is actually 55 ampere. So if I short circuit is 55 ampere, so we can find R Thevenin now. VOC over ISC. So R Thevenin will be 660 divided by 55. तो ये कितना बनता है? R Thevenin बनती है आपकी 12 ohms, ठीक है? R Thevenin is 12 ohms. R Thevenin आपकी बची 12 ohms। तो ये आपने देखा कि हमने यूजिंग थेवेनिन और नॉर्टन दोनों कॉन्सेप्ट यूज किए। ऑफ कोर्स इसमें डिपेंडेंट सोर्स था, तो R Thevenin हमने वैसे फाइंड नहीं की जैसे आप फाइंड करते हैं, वो आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आने चाहिए। अगर सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों तो आपने R Thevenin कैसे फाइंड करनी है। लेकिन इस केस में क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स था तो हमें VOC ओवर ISC वाले मेथड से फाइंड करना पड़ा। तो R Thevenin आई 12 ohms। अब हमने फाइंड क्या करना था, वो कह रहा था कि RL की वो वैल्यू फाइंड करें जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर लोड की रेजिस्टेंस R Thevenin के इक्वल हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जैसे ही आप R Thevenin फाइंड कर लिया करेंगे, इसका मतलब है आपने R लोड फाइंड करना, क्योंकि अगर R लोड R Thevenin के इक्वल हो तो ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। ये आपको जब आप वो उसकी डेरिवेशन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो कह रहा था कि पहले RL की वो वैल्यू फाइंड करें जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, वो मैंने आपको बताया वो वही होगी जो R Thevenin की वैल्यू आएगी। अगर ये 12 आई है तो इसको हमने ले लिया 12, हमने RL की वो वैल्यू भी फाइंड कर ली। फिर उसने कहा कि इसमें से कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है, वो मैक्सिमम पावर भी फाइंड करें। तो मैक्सिमम पावर का फार्मूला क्या होगा हमें पता है। पावर का फार्मूला क्या होता है? I²R, ठीक है, I²R। तो टोटल करंट इस सर्किट का क्या होगा? टोटल करंट होगा इस सर्किट का टोटल वोल्टेज जो कि ऐसे 60 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस बनती है 12 बाय 12 24। ये हो गया टोटल करंट। पावर क्या होती है? I²R, इसका मैं स्क्वायर इनटू RL इज 12। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास मैक्सिमम पावर आ जाएगी जो कि लोड को ट्रांसफर होगी, और वो बनती है 9075 वाट। 9075 वाट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने एक्चुअली किया क्या, फाइंड करना था हमने, ये सर्किट था, यहाँ पर RL लगा हुआ था, उसने कहा RL की वो वैल्यू फाइंड करें जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, और फिर वो पावर कितनी है वो भी फाइंड करें। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर सर्किट को मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको थेवेनिन या नॉर्टन की जरूरत पड़ती है। तो थेवेनिन और नॉर्टन आपको पता है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है। नॉर्टन क्या होता है कि R Thevenin के पैरेलल में आप लोड लगा देते हैं, तो दोनों सर्किट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर इंटेंशनली मैंने डिपेंडेंट सोर्स वाला सर्किट इस वजह से चुना है ताकि आपको आई शॉर्ट सर्किट भी फाइंड करना पड़े, क्योंकि अगर सर्किट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज दोनों हों तो R Thevenin इस फार्मूला से निकलती है। ये ऑलरेडी आप देख चुके होंगे लेक्चर VOC ओवर ISC से, जो कि है 12, जो कि हमने फाइंड की है वो है 12। तो हमने पहले VOC और ISC दोनों फाइंड करने थे, तो हमने इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। क्योंकि हमने इसकी पावर फाइंड करनी थी तो ये लोड रेजिस्टेंस थी, इसको हमने सर्किट से डिस्कनेक्ट कर लिया। इन टर्मिनल्स पे हमने जो वोल्टेज फाइंड की वो थी VOC,
इन्हीं टर्मिनल पे हमने अब RThevenin फाइंड करनी थी। क्योंकि सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है, उसको इंटरनल सोर्स से हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो हम कन्वेंशनल तरीके से RThevenin फाइंड नहीं कर सकते थे। तो दूसरा तरीका क्या है, हमने टर्मिनल को किया शॉर्ट और फाइंड किया ISC। तो एक और तरीका हमने जो RThevenin फाइंड करने का पड़ा है इन सर्किट के केसेस में, वो है VOC ओवर ISC। VOC हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, ISC हमने दोबारा से इक्वेशन लिख के फाइंड किया, तो उससे हमारे पास आ गया RThevenin 12 ओम। ठीक है, अब क्योंकि RThevenin 12 ओम आ गई और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ ही कही जाती है कि जब R लोड RThevenin के इक्वल हो, वही एक केस है जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। RL इससे ग्रेटर है, RL इससे लेस है, पावर कम ट्रांसफर होगी। मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड को कब ट्रांसफर होगी, जब RL RThevenin के इक्वल हो। तो क्योंकि RThevenin हमारी 12 आई, तो हमने RL को भी 12 लिया, क्योंकि हम मैक्सिमम पावर फाइंड करना चाह रहे हैं। RL को 12 लिया तो इसकी पावर फाइंड करनी थी। पावर का फार्मूला हमें पता है I2R होता है। तो I2 इस सर्किट का करंट था, टोटल करंट। टोटल करंट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस I2 होता है, तो स्क्वायर लिया इनटू 12, तो बनता है 9075 वाट। तो ये हमने मैक्सिमम पावर भी फाइंड कर ली। तो आई होप कि जब आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, थेवेनिन भी, नॉर्टन भी। अच्छा, इसी एग्जांपल को हम एक और तरीके से सुपरपोजिशन से भी कर सकते हैं। वैसे आपने हमेशा प्रेफर करना है सुपरपोजिशन ऐसे सर्किट्स में अप्लाई करना है जिनमें सारे सोर्सेज इंडिपेंडेंट हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं हो सकता सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स हो। सुपरपोजिशन अप्लाई हो सकता है, लेकिन जो आपने बारी बारी क्वांटिटीज मेजर करनी है वो सिर्फ आपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ही सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इस सर्किट में 3 सोर्सेज हैं जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो अगर मैं लेट्स से कोई क्वांटिटी फाइंड करना चाह रहा हूं सर्किट की, तो मुझे I1 और I2 दो करंट्स फाइंड करने हैं या 2 वोल्टेजेस फाइंड करनी है जो कि इन इंडिपेंडेंट सोर्सेज की वजह से होंगी। तो लेट्स से मैंने इसमें VOC फाइंड किया था, तो मैं VOC नहीं फाइंड करता मैश एनालिसिस से, मैं VOC फाइंड करने के लिए सुपरपोजिशन यूज करता हूं। ठीक है, तो वो देखें क्या चेंज आएगा। सेम हम VOC फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार हम VOC मैश एनालिसिस से नहीं सुपरपोजिशन से फाइंड करेंगे। तो देखते हैं सर्किट में क्या चेंज आता है। तो सर्किट में कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, सर्किट में हैं 2 इंडिपेंडेंट सोर्स। मैं फाइंड करना चाह रहा हूं VOC और फिर ISC। तो कैसे कर सकता हूं, क्या करूं, एट अ टाइम हमें पता है हमें एक इंडिपेंडेंट सोर्स कंसीडर करते हैं। तो अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो, डिपेंडेंट सोर्स को आपने दोनों बारीकी कंसीडर करना है। जब इसको कंसीडर कर रहे होंगे तब भी डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ होगा, जब इसको कंसीडर कर रहे होंगे तब भी डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ होगा। तो हम पहले 100 वोल्ट के सोर्स को कंसीडर करते हैं और दूसरे वाले सोर्स को उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसको इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 से सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटरनल्स पे हमने फाइंड करना है VOC इसको 4Vx डैश कर लें क्योंकि एक्चुअल सर्किट नहीं है, ये इसको Vx डैश कर लें। ये 100 वोल्ट है, ये 4 ओम्स है और ये इधर कनेक्टेड है, ये भी 4 ओम्स है, ये भी 4 ओम्स है। हमने फाइंड करना है VOC डैश, ठीक है, जो इस सोर्स की वजह से है। फिर दूसरे की वजह से हम फाइंड करेंगे उसको VOC डबल डैश करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें कि VOC डैश फाइंड करने के लिए अगेन इस सर्किट को देखें।
I1 I2 I3 आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार I1 I2 I3 डिफाइन करने से चेंज क्या होगा, ये वाला सोर्स नहीं होगा बस, ठीक है। आपने इसको कह दिया IA IB और IC डिफाइन कर लिया, ठीक है। IA IB IC अब आपने सिंपल मैश एनालिसिस को सॉल्व करना है और आपने ये तीन करंट फाइंड कर लेने हैं। ये और भी आसान होगा, इसमें 20 वोल्ट का सोर्स भी नहीं है। तो जैसे ही आप IC की इक्वेशन लिखेंगे, बिकॉज IC इज 0, तो आपके पास VOC डैश की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। VOC डैश की, इस केस में अच्छा स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स आप इसके लिए सुपरपोजिशन प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि सुपरपोजिशन की एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल हो जाए, ठीक है। आपको आइडिया हो जाए सुपरपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो तो आप सुपरपोजिशन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उस केस में आपने इसको इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट नहीं करना, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होती। तो आपने ये सर्किट ड्रॉ किया, फर्स्ट सोर्स लिया, इसको शॉर्ट कर दिया, इसको वैसे ही रहने दिया, इसको VX डैश कर दिया, ठीक है। उसके लिए सेम वही इक्वेशन पानी थी, तीन इक्वेशन हमने लिखी, देखें IC 0 लिया तो VOC डैश की इक्वेशन बन जाती है ये, ठीक है। ऑफ कोर्स अब दो सोर्स हैं, तो जो एक्चुअल VOC होगा वो VOC डैश प्लस VOC डबल डैश होगा। VOC डैश कौन सा है जो आपने इस केस में कंसीडर किया है, फर्स्ट वाले सोर्स के केस में VOC डबल डैश क्या होगा जो आप इस सोर्स के केस में कंसीडर करेंगे। तो अब हम इसको दोबारा से सब्स्टिट्यूट करते हैं, दूसरे सोर्स को इसको इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर दूसरे वाला सोर्स जो है वापस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, चेंज क्या आएगा इक्वेशंस में, प्लस माइनस 20 आ गया, ये हो गया शॉर्ट। अगर ये शॉर्ट हो गया तो इन इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, IA की इक्वेशन हमने ये लिखी थी, IA की इक्वेशन में अब -100 नहीं आया, -100 नहीं आया, बाकी इक्वेशन वैसी रहेगी 4IA - IB 4IA - IC, और अब इसमें क्या आ जाएगा 20 ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये 20 वाला सोर्स आ गया, 20 इज इक्वल टू 0। IB की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, IB की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस ये VX डबल डैश है, और ये क्योंकि हम दूसरे सोर्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये हम VX डबल डैश में IC की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, अब IC की इक्वेशन में इक्वल टू 20 आ जाएगा, क्योंकि -20 इस मैश में इंक्लूड हो रहा था, तो -20 + 4 IC - I3 4 IC - IB प्लस VOC डबल डैश होगा। तो नाउ VOC डबल डैश की इक्वेशन, क्योंकि IC 0 है तो VOC डबल डैश की इक्वेशन क्या हो जाएगी, +20 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो पहले जो हमने फाइंड किया वो VOC 1 था, दूसरी बार जो दूसरे सोर्स की वजह से फाइंड किया वो VOC 2 था, तो दोनों को पुट करेंगे हमारे पास VOC आ जाएगा। इसी तरह I शॉर्ट सर्किट के लिए भी आपको I शॉर्ट सर्किट की दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी। अगर आप I शॉर्ट सर्किट फाइंड करने के लिए सुपरपोजिशन लगाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स आप नहीं लगाएंगे, प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं सुपरपोजिशन समझा रहा हूँ तो इस वजह से ज़बरदस्ती लगा रहा हूँ, ठीक है। तो I शॉर्ट सर्किट के केस में हम क्या करेंगे, हमने ये ISC फाइंड करना होता है, तो ISC फाइंड करने के लिए हम VX डबल डैश वाली वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सर्किट उसके हिसाब से बना हो। तो ये है ISC डबल डैश, ISC किसके इक्वल होगा, ISC विल बी ISC डैश प्लस ISC डबल डैश। तो क्योंकि दूसरा सोर्स हमने कंसीडर किया हुआ है तो इसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है, तो इसके लिहाज से ISC डबल डैश देख लेते हैं क्या बनेगा। अब ISC क्योंकि इस लूप में फ्लो हो रहा है तो ऑफ कोर्स अब IC 0 तो नहीं होगा,
और एक चीज़ जो हम मिस कर गए हैं, फॉर Vx की दोनों बार हमने इक्वेशन नहीं लिखी। तो फर्स्ट केस जो Vx डैश बन रहा था, Vx डैश जो बनता है फर्स्ट वाले केस में, जब ये ओपन सर्किट हम फाइंड कर रहे थे, तो वो बनता है IA माइनस IC इंटू 4। ऑफकोर्स फिर IC 0 हो गया था तो वो 4IA बन गया। Vx डबल डैश जिसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है, अभी हमने इसको अपडेट नहीं किया इक्वेशन को आई शॉर्ट सर्किट के हिसाब से, तो Vx डबल डैश क्या बन रहा है, IA माइनस IC इंटू 4। ठीक है, तो ये तो थी Vx की इक्वेशन। Vx की इक्वेशन में खैर ऐसा खास चेंज आने नहीं वाला, बस Vx डैश और Vx सिंगल डैश का आपने ख्याल रखना है। तो जाहिर सी बात है वो भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप इन तीन करंट्स को फाइंड कर सकते, क्योंकि हम ये प्रोसीजर ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए हम इन्हें फाइंड नहीं कर रहे। तो अब इस वाले केस में क्या है कि जब हमने आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना है, आई शॉर्ट सर्किट भी हमें दो फाइंड करने पड़ेंगे, एक आई शॉर्ट सर्किट डैश, एक आई शॉर्ट सर्किट डबल डैश। तो इन इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, क्योंकि हम आई शॉर्ट सर्किट डबल डैश फाइंड कर रहे हैं तो इक्वेशन यही रहेगी, 4IA के लिए 4A IA माइनस IB प्लस 4A IA माइनस IC प्लस 20 is equal to 0 because ISC is equal to IC now. Now IC is not equal to 0. अब IC 0 नहीं है क्योंकि आई शॉर्ट सर्किट के लिए हमने इन टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया। IB की इक्वेशन देखें, IB की इक्वेशन क्या बनेगी, 4IB माइनस IA माइनस 4VX डबल डैश प्लस 4IB प्लस 4IB माइनस IC। नो IC इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन बनती है IC की। IC की इक्वेशन क्या बनेगी, 4IC माइनस IA प्लस 4IC माइनस IB प्लस, अब ये VOC यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हम अब आई शॉर्ट सर्किट की डबल डैश की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो क्योंकि ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो गए हैं तो हम इनके दरमियान वोल्टेज 0 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये चेंज आया इस इक्वेशन में। अब इस केस में Vx डबल डैश किसके इक्वल है, इट्स अगेन IA माइनस IC इंटू 4। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, Vx डबल डैश की वैल्यू इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास IA IB और IC आ जाएगा। तो IC ऑफ कोर्स आपका IC डबल डैश जो है, IC जो है आपका वो ISC डबल डैश होगा, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसको दूसरा सोर्स सिंगल डैश वाला जो था उसके लिए कंसीडर करें, तो ISC कैसे आएगा, इसको शॉर्ट कर दें, यहाँ पर इस वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर दें 100 वोल्ट। तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, इस इक्वेशन में इक्वल टू 100 आ जाएगा बस, 4IA माइनस IB 4IA माइनस IC माइनस 100 इक्वल टू के दूसरी तरफ इक्वल टू 100। ये चेंज आया। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, IC डैश, सो ISC सिंगल डैश हम फाइंड कर रहे हैं, तो Vx सिंगल डैश यूज होगा। सेकंड इक्वेशन देखें IB की। IB के लिए क्या है, अब देखें एक चीज आपने याद रखी है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हमने सिर्फ बारी बारी सब्स्टिट्यूट किया है, डिपेंडेंट सोर्स दोनों के केस में एग्जिस्ट कर रहा था। IB की इक्वेशन 4IB minus IA minus 4VX, now single dash because ISC single dash find कर लें, plus 4IB plus 4IB minus IC is equal to 0। ये इक्वेशन ऐसी ही रहेगी। C की इक्वेशन देखें, 4IC minus IA 4IC minus IB is equal to, अब ये 20 नहीं रहेगा क्योंकि उस केस में यहाँ 20 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ था। ISC डैश हम मेजर कर रहे हैं जो कि हमने इस सोर्स को लगा दिया और इसको शॉर्ट कर दिया, ये इक्वल टू 20 नहीं, अब इक्वल टू 0 बन गया। इसी तरह Vx डबल डैश किससे इक्वल होगा, वो IA माइनस IC इंटू 4 के इक्वल
ई होगा ई एक्स सिंगल डैश, क्योंकि हम ISC सिंगल डैश फाइंड कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ISC सिंगल डैश। अब इन तीन इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे, क्योंकि IC नाउ इज ISC सिंगल डैश। तो अगर हम VOC और ISC फाइंड करने के लिए सुपरपोजिशन लगाते हैं तो हमारे पास ऑफ कोर्स, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो VOC की भी दो वैल्यू आती, उनको ऐड करते VOC की एक वैल्यू बनती, ISC की भी दो वैल्यू आती, उनको ऐड करते तो ISC की एक वैल्यू बनती। ये वैल्यूज यूज करके हम यहाँ पर पुट करते तो उसमें ये 12 बनता था। तो एक तरह से आपका सुपरपोजिशन भी रिवाइज हो गया इसमें, ठीक है। एक दफा शुरू से इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने बेसिकली इसी सर्किट को सुपरपोजिशन से सॉल्व करने की कोशिश की है। हमने क्या किया, हमने कहा कि हम VOC फाइंड करते हैं। नॉर्मली VOC फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, आप मैश एनालिसिस लगा लें, लेकिन क्योंकि हमने सुपरपोजिशन को डिस्कस करना था तो हमने ज़बरदस्ती कहा कि हम इसको सुपरपोजिशन से फाइंड कर लेते हैं। तो सुपरपोजिशन से VOC फाइंड करने के लिए, क्योंकि सर्किट में दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक इस इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से VOC की वैल्यू आएगी, एक इस इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से VOC की वैल्यू आएगी। जो इसकी वजह से आ रही है उसको हमने VOC डैश कहा, तो इसकी वजह से आ रही है उसको हमने VOC डबल डैश। तो ये दो वैल्यूज का सम होना था। VOC डैश कब कैलकुलेट होगी, जब हम इसको शॉर्ट करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। VOC डबल डैश कब कंसीडर होगी, जब हम इसको शॉर्ट करेंगे और इसको कंसीडर करेंगे। ये दो वैल्यूज हमारे पास आए, उनको ऐड करेंगे, हमारे पास VOC वही आएगी जो यहाँ पर बनी थी 660। इसी तरह फिर हम इसको शॉर्ट कर देंगे और अगेन आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करेंगे। आई शॉर्ट सर्किट भी हमने दो सोर्सेज की वजह से फाइंड करना है, एक ये वाला इंडिपेंडेंट सोर्स और एक ये वाला इंडिपेंडेंट सोर्स। तो जो इसकी वजह से हमने फाइंड किया उसको हमने ISC डैश कहा और इसको शॉर्ट कर दिया, और जो इसकी वजह से हमने फाइंड किया उसको हमने ISC डबल डैश कहा और इसको शॉर्ट कर दिया। इन दोनों केसेस में हमने सिर्फ इनको बारी बारी सब्स्टिट्यूट किया है, डिपेंडेंट सोर्स को दोनों केसेस में लगा रहने दिया है। डिपेंडेंट सोर्स को आप क्योंकि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमारे पास फिर ISC की भी दो वैल्यू आई, ISC डैश और ISC डबल डैश, उन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा ओरिजिनल ISC, जो कि वही आएगा जो हमारा इस केस में आया था। इस केस में हमारा ISC कितना आया था, 16 एम्पीयर। बहरहाल वही वैल्यू आएगी जो आपकी प्रीवियस केस में आई थी, 55 एम्पीयर था। तो ISC 55 एम्पीयर की आएगा अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो बताना मैंने ये था कि अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है और दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं और आप सुपरपोजिशन लगाना चाह रहे हैं, तो बारी बारी आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज को तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डिपेंडेंट को नहीं छेड़ना, ठीक है। इसको कंसीडर करेंगे तब भी डिपेंडेंट सोर्स रहेगा, इसको कंसीडर करेंगे तब भी डिपेंडेंट सोर्स रहेगा। तो वैल्यूज बनेगी, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, ये हम एग्जांपल करने लगे हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। अब ये आपको तभी समझ आएगी जब आप नेक्स्ट लेक्चर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ले चुके होंगे, तो उसके बाद आपको ये एग्जांपल समझ में आएगी। तो मैं यही ज़रूर करूँगा कि अगर आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नहीं लिया, इसे आप करें पॉज, पहले वो लेक्चर लें, ठीक है, उससे रिलेटेड जो मैंने एग्जांपल कराई है उसको करें, उसके बाद आपके इस क्वेश्चन को आपने देखना है। और मैं यही ज़रूर कर रहा हूँ कि आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे कि आपने पढ़ा है कि ये सीरीज में अगर वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस हो, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं करंट सोर्स और उसके पैरेलल में वही सेम रेजिस्टेंस। इस तरह वोल्टेज सोर्स के सीरीज में ये रेजिस्टेंस है, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको करंट सोर्स में और उसके पैरेलल में वही सेम रेजिस्टेंस। तो हम पहले, क्योंकि हमने I0 फाइंड करना यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम इन दोनों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ब्रांचेस पर एट अ टाइम लगा देते हैं। तो सर्किट रीड्रॉ करते हैं, क्या बनेगा, ये इस ब्रांच की जगह क्या आ जाएगा, करंट सोर्स ऊपर की तरफ, करंट सोर्स और उसके पैरेलल में यही सेम
रेजिस्टेंस 3K का। इसी तरह इस ब्रांच की जगह क्या आ जाएगा, करंट सोर्स और उसके पैरेलल में यही रेजिस्टेंस 6K का, और ये नोड कॉमन है, ऊपर से नोड कॉमन है। अब एक करंट सोर्स की डायरेक्शन ऊपर क्यों है, एक की नीचे क्यों है, क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड थी, इसलिए इसको ऊपर किया। 12 वोल्ट की जो डायरेक्शन बन रही है वो डाउनवर्ड बन रही है, तो इसको मैंने डाउनवर्ड किया। बाकी यहाँ पर है 4K कनेक्टेड, और ये एक्चुअल वैल्यू है जो हमने I नॉट की फाइंड करनी है। बाकी अब इन दोनों को ट्रांसफॉर्म करने का क्या फायदा हुआ कि ये पैरेलल में आगे करंट सोर्सेस हम इनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, करंट सोर्स की वैल्यू होगी I source 1 will be equal to this voltage divided by this resistance। ये वोल्टेज और इस रेजिस्टेंस को अगर आप यूज करके फाइंड करें तो ये इस करंट सोर्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या बनती है 2 मिली एम्पियर। और इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस 12 डिवाइडेड बाय 6K, ये कितनी बनती है अगेन 2 मिली एम्पियर। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड। ठीक है, तो आप एक ऐसे सर्किट जिसमें वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस हो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे सर्किट में जो कि करंट सोर्स और उसके पैरेलल में वो सेम रेजिस्टेंस हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप ऐसे वोल्टेज सोर्स को जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ऐसे करंट सोर्स में जिसके पैरेलल में वही सेम रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इन दोनों को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब हमें फायदा क्या हुआ कि दोनों सोर्सेज पैरेलल में हैं, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो एक है 2 मिली एम्पियर, दूसरा भी है 2 मिली एम्पियर। ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इक्विवेलेंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। दोनों सोर्सेज आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। 2 मिली एम्पियर प्लस माइनस 2 मिली एम्पियर, तो 2 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर से कैंसिल हो गया। तो इक्विवेलेंट सर्किट, इनको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट से सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। उसकी वैल्यू क्या बनी 0 मिली। ठीक है, मींस ये सर्किट खत्म हो। ठीक है, अब हमारे पास 3K पे रह गया पैरेलल में 6K के 6K पैरेलल में 3K क्या बनता है 18 डिवाइड बाय 9K 2K बन जाता है। तो हम एक ब्रांच को खत्म कर देते हैं, एक ही ब्रांच रह जाएगी, रिजल्टेंट आ गया 2K। ठीक है, अब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं, क्योंकि ये भी वोल्टेज सोर्स है, और इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं करंट सोर्स और उसके पैरेलल में ये 2K की रेजिस्टेंस, तो फिर ये वाला करंट सोर्स इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। 2K इसके पैरेलल में, this is 2K, this is 4K, I नॉट आपने फाइंड करना है। आपने याद रखना है कि आपने उस ब्रांच को कभी भी नहीं छेड़ना जिस ब्रांच की क्वांटिटी आपने फाइंड करनी हो, उसको कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं करना। तो इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी I will be equal to this voltage divided by this resistance। तो 12 divided by 2K क्या हो जाएगा 6 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब 2 मिली एम्पियर 6 मिली एम्पियर के पैरेलल में आ गया डायरेक्टली। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, एक की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक की डाउनवर्ड है, तो रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस होगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 4 मिली एम्पियर। ये होगी 2K की रेजिस्टेंस और ये होगी दो रेजिस्टेंस I नॉट हमने फाइंड करना था।
तो अब नज़र आ रहा है आपको कि इन दोनों सोर्सेज के ऐड होने के बाद जब हमने इसको इसके रिजल्टेंट से सब्स्टिट्यूट किया तो सिंपल अगर हम करंट डिवाइडर रूल लगाएं तो हम आई नॉट फाइंड कर सकते हैं। तो यूजिंग करंट डिवाइडर रूल आई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस 2k, दोनों रेजिस्टेंस का सम 6k प्लस 2k 8k इनटू टोटल करंट 4 मिली एंपियर। आई नॉट किसके इक्वल आ गया 1 मिली एंपियर। और ये हमने कैसे फाइंड किया, यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के। तो आई नॉट आ गया हमारे पास 1 मिली। इसको एक दफा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। ऑफकोर्स जब आप ये देखेंगे तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ चुके होंगे। हम ऐसे सोर्सेज को, ऐसे वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे वोल्टेज सोर्स ऐसे करंट सोर्स के जिसके पैरेलल में वही सेम रेजिस्टेंस हो, जो कि हमने इस केस में किया था। हमने इस 6 वोल्ट और इस 3k को कन्वर्ट किया था करंट सोर्स में और उसके पैरेलल में वही सेम रेजिस्टेंस हमने लगाई थी 3k की और सेम ऐसे ही हमने यहां पे किया था। 6 वोल्ट और 3k को हमने कन्वर्ट कर दिया था करंट सोर्स, उसके पैरेलल में वही सेम रेजिस्टेंस। तो सोर्स की वैल्यू कैसे आती है V/R से, तो कितनी बनी थी 2 मिली एंपियर। इसी तरह इसकी क्योंकि प्लस अब था तो करंट का एरो ऊपर की तरफ रखा, क्योंकि इसका प्लस डाउनवर्ड बन रहा है 12 का, तो इसलिए करंट सोर्स का एरो डाउनवर्ड रखा। तो इसकी वैल्यू क्या बनी I V/R 12/6, ये भी बनी 2 मिली एंपियर और 6k वही सेम रेजिस्टेंस उस करंट सोर्स के पैरेलल में। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी सोर्सेज की और मैग्नीट्यूड सेम था, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन रह गया था 3k पैरेलल टू 6k। 3k पैरेलल टू 6k क्या बनता है 2k। अगर हम उनको पैरेलली सॉल्व करें तो हमने एक ब्रांच को खत्म किया और इसको इसके रिजल्टेंट से सब्स्टिट्यूट कर दिया 2k से। और फिर हमने देखा कि मजीद कोई सोर्स ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो हमने देखा कि अगेन इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में 2k रेजिस्टर था, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक करंट सोर्स, उसके पैरेलल में वही सेम रेजिस्टेंस 2k। और इस सोर्स की वैल्यू कैसे आती है V/R से डिवाइडेड बाय 2k, 6 मिली एंपियर बनी। इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, बाकी सर्किट वैसे ही ड्रॉ कर दिया। तो अब हमने देखा कि ये 6 मिली एंपियर डायरेक्टली कनेक्टेड है पैरेलल में 2 मिली एंपियर से। तो अगर ये पैरेलली डायरेक्ट कनेक्टेड हैं तो हम इनको एक सोर्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दोनों की डायरेक्शन देखते हुए हमने देखा कि ये सबट्रैक्ट होंगे। 6 मिली एंपियर अपवर्ड है, 2 मिली एंपियर डाउनवर्ड है, तो हमेशा डायरेक्शन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाले सोर्स की आती है जो कि 6 मिली एंपियर था। तो अपवर्ड डायरेक्शन के साथ इनका डिफरेंस दिया वो होना 4 मिली एंपियर। बाकी सर्किट एज इट इज हमने कनेक्ट कर दिया क्योंकि हमने आई नॉट फाइंड करना था। तो करंट डिवाइडर रूल लगा के हमने आई नॉट फाइंड कर लिया, क्योंकि ये करंट डिवाइड हो रहा है इन दो ब्रांचेस में, एक की रेजिस्टेंस है 2k, एक की रेजिस्टेंस है 6k। तो आई नॉट कैसे होता है अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो वो आई नॉट हमारा बना 1 मिली एंपियर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर लिया है तो अभी के लिए इतना ही। हमने नेक्स्ट लेक्चर के भी कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम इस तरह ही वीडियो बना के अपलोड भी कर देंगे। तो आप आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया।